Hello, listening friends. We're delighted you joined us again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर हमारे साथ हैं। This is the last broadcast on this series of messages entitled How God Works. परमेश्वर कैसे कार्य करता है नामक संदेश श्रृंखला में ये अंतिम प्रसारण है। You may want to turn with me to 2 Kings chapter 2. चाहें तो आप मेरे साथ राजाओं की दूसरी पुस्तक 2 अध्याय पर आ सकते हैं। Through this example, we will learn about the 3 stages which every believer must experience. इस उदाहरण के द्वारा हम उन 3 स्तरों के बारे में जानेंगे जिनका हर विश्वासी को अनुभव करना जरूरी है। Elijah has been given a word from the Lord. एलिया को परमेश्वर से वचन मिला And now it is a matter of hours before he will be propelled into the presence of God. और अब कुछ ही समय बाकी है जब उससे परमेश्वर की उपस्थिति में बुला लिया जाएगा। Before that, इससे पहले he goes on a quick missionary journey to visit the 3 seminaries that he has founded. वो जल्दी से उन 3 बाइबल अध्ययन विद्यालयों को देखने की सेवकाई यात्रा पर निकल जाता है जो उसने स्थापित किए हैं। They are 3 Bible schools in 3 different cities where the sons of the prophets studied under him. ये 3 अलग अलग शहरों में ऐसे 3 बाइबल विद्यालय हैं जहां नबियों के पुत्रों ने उससे शिक्षा ली। And Elijah goes there to say goodbye to each of them before he goes to be with God. और एलिया इससे पहले कि परमेश्वर के साथ रहने के लिए चला जाए वो विदा लेने के लिए इन विद्यालयों में जाता है। Elisha, his understudy and disciple and the heir apparent, would not leave him. अलीशा जिसने उससे शिक्षा पाई, उसका चेला और उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी उससे अलग नहीं होगा। He went everywhere Elijah went. वो एलिया के साथ साथ हर जगह गया। Even when Elijah implored him to leave. यहाँ तक कि जब एलिया ने उसे चले जाने का आग्रह किया। But these towns that Elijah went into with Elisha have very important symbolic meanings. परंतु ये नगर जहाँ एलिया अलीशा के साथ गया, इनके बहुत ही महत्वपूर्ण सांकेतिक अर्थ हैं। There is significance in the sequence with which he visited these places. जिस क्रम के साथ वो इन स्थानों पर गया उसका एक महत्व है। They represented the 3 stages through which every believer goes. ये उन 3 स्तरों को दर्शाते हैं जिनसे हर विश्वासी गुजरता है। In verse 1, एक पद में he went to Gilgal. वो गिलगाल को गया। We know about Gilgal from Joshua 4. हम यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय से गिलगाल के बारे में जानते हैं। Gilgal represented a place of beginning. गिलगाल शुरुआत के एक स्थान का प्रतीक है। Gilgal represented a place of security and safety. गिलगाल सुरक्षा और बचाव के एक स्थान का प्रतीक था। Gilgal represented a place of communion and sharing with God. गिलगाल परमेश्वर के साथ सहभागिता और संगति के स्थान का प्रतीक था। Gilgal represented a place of preparation. गिलगाल तैयारी के स्थान का प्रतीक था। In Joshua chapter 4, यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय में Gilgal became engraved on the minds of every Jew गिलगाल का नाम हर यहूदी के मन पर खोदा गया, because there Joshua piled up 12 stones representing the 12 tribes of Israel. क्योंकि वहां यहोशू ने इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रतीक के रूप में 12 पत्थर खड़े किए। There he told the Israelites that in the future when their descendants ask their fathers what these stones mean, वहां उसने इस्राएलियों से कहा कि भविष्य में जब उनके वंशज अपने पूर्वजों से पूछें कि इन पत्थरों का क्या अर्थ है, they are to tell them, तो वो उन्हें बताएं, this is where God dried up the Jordan River so that Israel could cross over into the promised land. कि यही वो स्थान है जहां परमेश्वर ने यर्दन नदी को सुखा डाला था कि इस्राएल इससे पार करके प्रतिज्ञा की धरती में प्रवेश करे। Gilgal is a symbol of preparation. गिलगाल तैयारी का चिन्ह है। And there Elijah remembered the beginning of his obedience to God. और वहां एलिया ने परमेश्वर का आज्ञा पालन करने की शुरुआत को स्मरण किया। It was the time when God gave him a challenge, telling him to go to Ahab. ये वो समय था जब परमेश्वर ने उसे अहाब के पास जाने की आज्ञा देते हुए उसे एक चुनौती दी, And Elijah obeyed. और एलिया ने इसका आज्ञा पालन किया। Gilgal is a symbol of Elijah's obedience to the Lord when he called him initially. गिलगाल एलिया की यहोवा के प्रति आज्ञाकारिता का चिन्ह है जब उसने शुरू में उसे बुलाया। Then from Gilgal, Elijah went to Bethel with Elisha close on his heels. फिर गिलगाल से एलिया बैतेल को गया जबकि एलीशा उसके बिल्कुल पीछे पीछे था। Bethel
is a place of altars. बैतल वेदियों का स्थान है। Bethel means the house of God. बैतल का अर्थ है परमेश्वर का घर। Abraham returned to Bethel, where he had built an altar. अब्राहम बैतल को वापस लौटा जहां उसने एक वेदी खड़ी की थी। After he went to Egypt and repented from his lying about his wife, उसके मिस्र जाने और अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोलने से पश्चाताप करने के बाद Jacob built an altar in Bethel. याकूब ने बैतल में एक वेदी बनाई थी। Bethel is a place of heart searching and self-examination. बैतल अपने मन को जांचने और आत्म मंथन का स्थान है। Bethel is a place of sacrificing. बैतल बलिदान का स्थान है। Bethel is a place of putting whatever's close to your heart and whatever you are holding on to on the altar of God. बैतल वो स्थान है जहां जो कुछ आपको अति प्रिय है और जो भी आप थामे हुए हैं उसे परमेश्वर की वेदी पर रखा जाता है। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछता हूँ, What is God asking you to put on the altar? परमेश्वर आपको वेदी पर क्या रखने के लिए कह रहा है? God does not ask you to do that because he wants it or he needs it. परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि ये उसे चाहिए या उसे इसकी जरूरत है, But because he knows that you need to do that. परंतु इसलिए क्योंकि वो जानता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत है। And there Elijah was remembering his giving of his life to serve and follow the word of God. और वहां एलिया सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण करने और परमेश्वर के वचन के पीछे चलने की बात स्मरण कर रहा था। Then he went to Jericho from Bethel. फिर बैतल से वो यरीहो गया। Jericho represented battles. यरीहो युद्धों को दिखाता है। Jericho is the place where God supernaturally gave victory in the battle. यरीहो वो स्थान है जहां परमेश्वर ने अलौकिक रीति से युद्ध में विजय दी। Jericho represented the battles in Elijah's life. यरीहो एलिया के जीवन में युद्धों का प्रतीक था। Jericho represented the battle with the prophets of Baal. यरीहो बाल के नबियों के साथ उसके युद्ध का प्रतीक था। Jericho represented the battle with Ahab and Jezebel. यरीहो अहाब और इजबल के साथ उसके युद्ध का प्रतीक था। Jericho represented the battle with depression and discouragement. यरीहो उदासी और निराशा के साथ उसके युद्ध का प्रतीक था। Jericho represented the battle of injustice against Naboth. यरीहो नाबोत के साथ हुए अन्याय के युद्ध का प्रतीक था। There Elijah remembered the battles. वहां एलिया ने इन युद्धों को स्मरण किया, As if to say, जैसे कि वो कह रहा हो, I am just so glad that the battle is over. बस मैं खुश हूं कि युद्ध समाप्त हुआ। First to Gilgal, सबसे पहले गिलगाल, then to Bethel, फिर बैतेल को, then the departing point. फिर विदाई का स्थान। Some of you have just begun your Christian walk. आप में से कईयों ने अपनी मसीही यात्रा भी शुरू ही की है। You may have just begun the process of sanctification. आपने शायद पवित्रता की प्रक्रिया अभी शुरू ही की है। Symbolically speaking, you are at Gilgal right now. सांकेतिक रूप से कहें तो आप इस वक्त गिलगाल में हैं। Others of you are walking on your way to Bethel, आप में से बाकी कुछ लोग बैतेल की ओर जाने वाले रास्ते पर हैं, where you are building an altar for God. जहां आप परमेश्वर के लिए एक वेदी बना रहे हैं। There you are hearing the voice of God telling you to sacrifice. वहां आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं जो आपसे बलिदान करने को कह रही है। You are hearing the voice of God saying to you, आप परमेश्वर की आवाज को आपसे ये कहते हुए सुन रहे हैं, the reason you feel there is dryness in your Christian walk is because you are not obeying me and sacrificing in Bethel. तुम्हारा अपनी मसीही चाल में सूखापन महसूस करने का कारण यह है क्योंकि तुम मेरा आज्ञा पालन न करते हुए बैतेल में बलिदान नहीं चढ़ा रहे हो। That sacrifice may be a broken romance. ये बलिदान टूट चुका प्रेम हो सकता है। That sacrifice may be a shattered dream. ये बलिदान बिखर चुका सपना हो सकता है। The sacrifice may be a lost job or career. ये बलिदान खोई हुई नौकरी या भविष्य हो सकता है। That sacrifice may be a loss of a loved one. ये बलिदान किसी प्रियजन को खोना हो सकता है। Don't ever forget that whenever you are placing on the altar of Bethel, God is at work in your life. कभी मत भूलिए कि जब कभी भी आप बैतेल की वेदी पर कुछ रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। Some of you have not only been to Gilgal and to Bethel, but you have also been to Jericho. आप में से कई न केवल गिलगाल और बैतेल ही गए हैं परंतु आप यरीहो भी गए हैं। You have known the places of victory after battle. आप युद्ध के बाद विजय के स्थानों से परिचित हैं। It may have been a battle in your own home and God gave you victory. ये युद्ध हो सकता है आपके घर में रहा हो और परमेश्वर ने आपको विजय दी। It may have been a battle where your son or daughter, after years of rebellion, turned to Christ. ये वो युद्ध हो सकता है जिसमें वर्षों के विद्रोह के बाद आपका पुत्र या पुत्री मसीह की तरफ मुड़े हैं। It may have been a battle of thought where you have wrestled
with doubt and fear and disbelief. शायद ये सोच का युद्ध रहा होगा जहां आपने संदेह, अविश्वास और भय के साथ संघर्ष किया हो, And now you have made it across the river. और अब आप नदी के पार पहुंच गए हैं। It may have been a battle of prayer where God is telling you to spend time with Him. शायद ये प्रार्थना का युद्ध रहा होगा जहां परमेश्वर आपको उसके साथ समय बिताने के लिए कह रहा है। It may have been a battle of sensuality. शायद ये विषय भोग का युद्ध रहा होगा। Whatever Jericho you are in, आप जिस भी यरीहो में हैं, God has given you the victory in the past. परमेश्वर ने अतीत में आपको विजय दी। Let that victory serve as a reminder that God will give you victory again and again. होने दें कि वो विजय आपको स्मरण दिलाती रहे कि परमेश्वर आपको बार बार विजय देगा। Now you notice Elijah wanted to walk into these places alone. अब आप ध्यान दें कि एलिया इन स्थानों पर अकेले जाना चाहता था। You remember after Mount Carmel, he was discouraged and he left his servant at Beersheba and went alone. आपको याद होगा जब वो कार्मल पर्वत के बाद निराश था और वो अपने दास को बेरशबा में छोड़कर अकेला ही आगे जाना चाहता था। When he got there alone, he said to God, "Take my life." जब वो अकेला वहां पहुंचा, उसने परमेश्वर से कहा, मेरा प्राण ले ले। He was discouraged and despondent. वो निराश और उदास था। And had the servant been there, he probably would have encouraged him. और यदि उसका दास वहां उसके साथ होता तो शायद वो उसे प्रोत्साहित करता, Because the young man would have reminded him of the goodness of God. क्योंकि वो नौजवान उसे परमेश्वर की भलाइयों का स्मरण दिलाता। And here again, Elijah wants to go it alone. और यहाँ फिर एलिया अकेले जाना चाहता है, But Elisha, out of a sense of love and loyalty and commitment and devotion, does not let him walk there alone. परंतु अलीशा प्रेम, वफादारी, समर्पण और लगन के एहसास से उसे अकेले नहीं चलने देता। Oh, what a friendship. वाह क्या दोस्ती है, Oh, what a commitment. वाह क्या समर्पण है। Such devotion is rare indeed. ऐसी लगन सच में दुर्लभ है, But it is also blessed indeed. परंतु ये सच में आशीषित भी है। For later on you will discover that Elisha got double portion of Elijah's blessing. क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि अलीशा को एलिया की आशीष का दुगना हिस्सा मिला। If you have one person who walks with you to Gilgal यदि आपके पास एक भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ गिलगाल तक जाए and walks with you to Bethel और आपके साथ बेतेल तक जाए and he walks with you to Jericho, और वो आपके साथ यरीहो को जाए, you are blessed indeed. तो आप सच में आशीषित हैं। If you don't, यदि नहीं है I would urge you to take time and cultivate such a person who will walk with you. तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय निकालकर ऐसा व्यक्ति तैयार कीजिए जो आपके साथ चले, Not only to Gilgal, न केवल गिलगाल तक, not only to Bethel, न केवल बेतेल तक, not only to Jericho, न केवल यरीहो तक, but all the way to Jordan. परंतु यर्दन के पूरे मार्ग तक। A man should choose a man पुरुष पुरुष को चुने, and the woman chooses a woman औरत औरत को चुने, to walk with you. जो आपके साथ चले। When they go to the Jordan, जब वो यर्दन पर पहुंचे as the gust of wind began to blow, और जैसे ही हवा का तेज झोंका शुरू हुआ, Elijah's mantle fell and Elisha picked it up. एलिया का चोगा गिरा और एलीशा ने इसे उठा लिया। When the departing moment came, जब विदाई का पल आया, Elijah, the mentor, the discipler, asked his disciple what he could do for him. तो गुरु और शिक्षक एलिया ने अपने शिष्य से पूछा कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। And I love Elisha's boldness. और मुझे अलीशा का साहस बहुत अच्छा लगता है। I have prayed for God to give me such boldness. मैंने परमेश्वर से मुझे ऐसा साहस देने के लिए प्रार्थना की है। I hope that you would pray for such boldness. मुझे आशा है कि आप भी ऐसा साहस पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। Elisha could have said, अलीशा कह सकता था, "I don't need anything. मुझे कुछ नहीं चाहिए, I'm not worthy to receive anything." मैं कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं हूँ। He didn't do that. उसने ऐसा नहीं I किया। want the double portion of your spirit. मुझे तेरे आत्मा का दुगना भाग चाहिए। Elisha knew exactly what he was asking. अलीशा अच्छे से जानता था कि वो क्या मांग रहा था। Can I be bold as to ask you a very personal question? क्या मैं आपसे एक बहुत ही निजी प्रश्न पूछने का साहस कर सकता हूँ? If the Lord Jesus Christ will come to you in person and sit with you today, यदि आज प्रभु यीशु मसीह साक्षात आकर आपके पास बैठे, if he would ask you, what can I do for you? यदि वो आपसे पूछे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, What would you ask for? तो आप क्या मांगेंगे? What would you say? आप क्या कहेंगे? Think about this. इस बारे में सोचिए।
Elisha could have asked for power to call down fire from heaven, अलीशा आकाश से आग मंगाने की शक्ति मांग सकता था, but he didn't. परंतु उसने ये नहीं मांगा। Elisha could have asked for power to raise the dead widow's son, अलीशा विधवा के मृत पुत्र को जिलाने की शक्ति मांग सकता था, but he didn't. परंतु उसने नहीं किया। This wise man asked for the Spirit of God that dwelt in Elijah to dwell in him. इस बुद्धिमान इंसान ने परमेश्वर का वो आत्मा मांगा जो एलिया में रहता था कि अब वो उसके अंदर निवास करे, And he asked for that Spirit in abundance. और उसने वो आत्मा भरपूरी से मांगा। Listen to what James says. सुनिए याकूब क्या कहता है, You do not have because you do not ask. तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, And when you ask, you do not receive और जब तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, because you ask with the wrong motive. क्योंकि तुम गलत उद्देश्य से मांगते हो। I believe that when it comes to God's work, मेरा विश्वास है कि जब परमेश्वर के काम की बात आती है, when it comes to God's glory, जब परमेश्वर की महिमा की बात आती है, God wants us to ask for big things. परमेश्वर चाहता है कि हम बड़ी चीजें मांगे। God expects us to come to Him and ask for an ocean. परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम उसके पास आकर समुद्र मांगे, But instead, we bring Him a small cup. परंतु इसके बजाय हम उसके पास छोटा सा कप लेकर आते हैं। And I can almost hear God saying, why a small cup? और मैं तकरीबन परमेश्वर को कहते हुए सुन सकता हूँ, ये छोटा सा कप क्यों? I want to bless you. मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, I want to use you. मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। When you read of the life of Elisha, you're going to discover that God answered his prayer exactly. जब आप अलीशा के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जैसा उसने चाहा बिल्कुल वैसा उत्तर दिया। While Elijah performed 4 miracles, Elisha performed 8. जबकि एलिया ने 4 चमत्कार किए थे, वहीं एलीशा ने 8 चमत्कार किए। So let me challenge you today. तो मैं आज आपको चुनौती देता हूँ, Dare to ask God for big things. परमेश्वर से बड़ी चीजें मांगने का साहस कीजिए, Dare to ask God for great things. परमेश्वर से महान चीजें मांगने की हिम्मत कीजिए, Dare to ask God for mighty things. परमेश्वर से सामर्थी चीजें मांगने की हिम्मत करें। He wants to do it. वो ऐसा करना चाहता है। When it comes to the work of God, जहाँ परमेश्वर के कार्य की बात आती है, when it comes to the kingdom of God, जब परमेश्वर के राज्य की बात आती है, when it comes to the salvation of souls, जब आत्माओं के उद्धार की बात आती है, when it comes to building up the body, जब देह को उसारने की बात आती है, when it comes to impacting the world for Jesus Christ, जब यीशु मसीह के लिए संसार पर प्रभाव डालने की बात आती है, you can ask boldly. तो आप निर्भीकता से मांग सकते हैं। In the ascension of Elijah in the Old Testament and in the ascension of the Lord Jesus Christ in the New Testament, पुराने नियम में एलिया के उठाए जाने और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने में both were witnessed by personal disciples. दोनों में निजी शिष्यों ने ये अपनी आंखों से देखा, Not the large crowds, विशाल भीड़ ने नहीं, but personal disciples. परंतु निजी शिष्य। Had I been staging Elijah's ascension, यदि मैं एलिया के उठाए जाने का नाट्य रूपांतरण करता, I would want the whole royal family of Israel to be there. तो मैं इसराइल के पूरे राजघराने को वहां पर चाहता। Thank God this is not a series about how I work, परमेश्वर का धन्यवाद है कि ये श्रृंखला इस बारे में नहीं है कि मैं कैसे कार्य करता हूँ, but about how God works. परंतु इस बारे में है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। And God doesn't work the way I would work. और परमेश्वर वैसे कार्य नहीं करता जैसे मैं करता। These moments were reserved only for those who live by faith. ये पल केवल उनके लिए आरक्षित थे जो विश्वास के द्वारा जिए। God saves his best for those who have faith. परमेश्वर उत्तम उनके लिए बचा रखता है जिनके पास विश्वास है। When Elisha was ascended, जब एलिया उठाया गया, his mantle, which represented the Spirit of God, was given to Elisha. उसका चोगा जो परमेश्वर के आत्मा का प्रतीक था वो अलीशा को दिया गया। And when the Lord Jesus Christ ascended to heaven, और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, the Bible says बाइबल कहती है that he gave the Holy Spirit of God to all who desired him. कि उसने परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन सबको दिया जो उसे पाने की इच्छा रखते हैं। I want to end this series of messages by reminding you of what I said in the last message. मैं आपको वही स्मरण दिलाते हुए जो मैंने पिछले संदेश में कहा था, इस संदेश श्रृंखला को समाप्त करना चाहता हूँ। If you really desire heaven in the hereafter, यदि आप सच में यहाँ के बाद स्वर्ग चाहते हैं, you have to walk with God in the here and now. तो आपको यहाँ और अब परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। In Matthew 24:36, Jesus said, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 36 पद में यीशु ने कहा, only the Father knows the hour. केवल पिता ही उस घड़ी को जानता है। If you were to die today यदि आज ही आपकी मृत्यु हो जाए and face the Lord Jesus, और आपको प्रभु यीशु का सामना करना हो, if you look into the eyes of the one who died for you, यदि आप उसकी आंखों में देखें जिसने आपके लिए
अपनी जान दी, the one who paid the price for your sin and saved you and redeemed you, वो जिसने आपके पापों की कीमत चुकाई और आपको छुटकारा और उद्धार दिया, what would you say? तो आप क्या कहेंगे? If you are not sure you will go to heaven today, you can be sure once and for all. यदि आपको निश्चय नहीं है कि आज आप स्वर्ग जाएंगे, तो आप एक ही बार हमेशा के लिए निश्चित हो सकते हैं। Just take God at His word. बस परमेश्वर के वचन पर भरोसा कीजिए। It is not because of anything you do, ये आपके कुछ करने से नहीं होगा, but because Jesus promised that when you come to Him in repentance and faith, you will receive eternal life. परंतु क्योंकि यीशु ने ये वादा किया है कि जब आप पश्चाताप और विश्वास के साथ उसके पास आएंगे तो आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। But if you have known the Lord Jesus Christ and you have not walked with Him, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं परंतु उसके साथ साथ नहीं चले हैं, what will you say when you see Him? तो जब आप उसे देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? Will you say, I'm sorry I wasn't different from the unbelievers? क्या आप ये कहेंगे, मुझे खेद है कि मैं अविश्वासियों से भिन्न नहीं था, I'm sorry I was cold. मुझे माफ कीजिए मैं ठंडा रहा, I'm sorry I was busy. मुझे माफ कीजिए मैं व्यस्त था, I am sorry I didn't realize your kingdom needed me. मुझे माफ कीजिए मुझे एहसास नहीं था कि आपके राज्य को मेरी आवश्यकता है। Will you apologize for all these things, or will you say, Lord God, I have given you my all? क्या आप इन सब बातों के लिए क्षमा मांगेंगे या फिर आप कहेंगे, प्रभु परमेश्वर मैंने अपना सब कुछ तुझे दिया है? In 2 Timothy 4:7-8, तिमोथियस की दूसरी पत्री 4 अध्याय के 7 और 8 पद में, when the time came for the Apostle Paul to go and face the Lord Jesus, there was no regret. जब प्रेरित पौलुस के जाने और प्रभु यीशु मसीह का सामना करने का समय आया तो उसे कोई पछतावा नहीं था। He said, I fought the good fight. उसने कहा, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी। Therefore he knew that the crown is awaiting him. इसलिए उसे पता था कि मुकुट उसकी प्रतीक्षा में है। It is my prayer that this will be your condition when you're getting ready to meet the Lord. ये मेरी प्रार्थना है कि जब आप प्रभु से मिलने की तैयारी करते हैं तो आप भी इसी स्थिति में हो। Until we meet in heaven, I wish you God's richest blessing. हमारे स्वर्ग में मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना